If they establish the Sharia, it is an Islamic country. बरन बरन खिली कलियां जुई गुलाब चंपा चमेली बेलरिया डार डार बोलत मतवारी कोयलिया बरन बरन खिली कलियां जुई गुलाब चंपा चमेली बेलरिया। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कंपोजिशन वह दादा गुरु जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डार डार बोलत मतवारी कोयलिया वरण वरण खीली कलिया जूही गुलाब चंपा बेलरिया। तो मुझे लगता है कि हमारा देश या फिर किसी का भी जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें तरह तरह की फूल हो, पक्षियाँ हो, या फिर सुंदर एक पंछी हो, या फिर गार्डन हो, उसको जो कहते हैं। दिस इज थैंक यू। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए नमस्कार, भालो आছেন। क्योंकि मैं ढाका में हूँ, ढाका के ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर में हूँ। इस मंदिर का निर्माण वैसे तो 12वीं सदी में हुआ था, लेकिन इसे एक राष्ट्रीय हिंदू टेम्पल घोषित किया गया। तो बांग्लादेश अपने आप का एक ऐसा मुल्क है जो एक इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद यहाँ एक राष्ट्रीय हिंदू मंदिर है। लेकिन बावजूद इसके पिछले कुछ वक्त से जो हालात बने हुए हैं और अब यहाँ पर जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं 12 फरवरी को, हमारे साथ मोनिंद्र कुमार नाथ जी हैं जो कि एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हैं। यहाँ की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है अल्पसंख्यकों की, विच इज़ द बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल। और इसी ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर के ये पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मोनिंद्र दा, थैंक यू আমাদের সাথে কথা বলার জন্য। Thank you very much. I am really grateful to you. Now we are a historical temple. It is a long 800 years old temple. It is the symbol of unity. All the community people, not only Hindu and all types of people, that means Muslim or outside the people from the outside, they visited the temple as a historical place. And not only there is a historical, every year committee organizes so many programs along with all the community, that means major people, that means Islam, not only in consideration of religious, in consideration of to accommodate all the people, that means civil society person, that means human rights person. There is a visit here, human rights activist. Everybody visited the temples, and we all are together here due to in different occasion. तो ये जो मंदिर है ये अपने आप में ऐतिहासिक भी है और सही में धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद का चिन्ह भी है बड़ा। यहाँ पर हिंदू ही नहीं, सभी धर्म के लोग आते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आते हैं, समाज के हर सेक्शन के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनको बातचीत, डायलॉग के लिए भी एक फोरम मिलता है। सर, अभी इस वक्त जो चुनावों के हालात हैं, 12 फरवरी को चुनाव हो रहे हैं, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन पुटिंग आउट डेटा कि कितने अटैक्स हुए हैं। आप लोगों ने कहा है कि कम से कम 522 कम्युनल अटैक्स हुए हैं इन 2025, इंक्लूडिंग 61 किलिंग्स। You know, we are running with now at present running so many pain, fear, because you know, not only every time after that means after liberation, after independence, we are face so many. It is we cannot mention. It is this type of such type of incident will happen or maybe happen or happened. It is this is not our desire or it is because you know, you also mentioned now interim government is running. They are just this place chief advisor after taking oath
he visited the temple. 13th August, 8th August she taking oath. After that came here 13th 2024 13 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइजर हैं इस वक्त अंतरिम सरकार के, वो यहाँ आए थे शपथ ग्रहण के बाद. And not only that, he mentioned here and raised his voice, we are one family. There is no discrimination. Hindu, Buddhist, Christian, Unity and other all communities, everybody have rights equal. But after a long time, 18 months over, we have not seen any activities by that person. It is a unbelievable thing, as because during the time of before his he started his regime, there is happened so many incidents. We already cast out in that times during the time of 2024 4th August to 20th August. That means 14 days. 2010 incident or atrocities. So many vandalism, arson, so many are there. But after his resume, after taking the oath, or his in his during the period, it is continuing atrocities happening. আপনি 61 বলেছিলেন, কিন্তু স্যার এখানে ऑफन बिकॉज परंपरागत रूप से आपको याद हो कि जहाँ बांग्लादेश के आप आज़ादी के इतिहास को देखते हैं, 1971 की लड़ाई को देखते हैं, जो भाषा की पहचान और कल्चरल लिंग्विस्टिक बंगाली आइडेंटिटी की वजह से जिसकी शुरुआत हुई थी, तो ट्रेडिशनली जो अवामी लीग के सपोर्टर्स थे वो बांग्लादेशी हिंदूज ही थे. लेकिन सरकार की तरफ से काफ़ी बार कहा गया कि इन लोगों को इसलिए नहीं टारगेट किया गया क्योंकि ये हिंदू हैं, बिकॉज ये पॉलिटिकली एफिलिएटेड हैं टू अवामी लीग. तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस के मसले हैं, नॉट नेसेसरीली कि ये हिंदू हैं तभी इन पर अटैक हो रहा है. They are telling in their statement it is a political incident, but it is not. We not agree with their statement, because so many temples is vandalized, temple attack, arson, and idols is broken. This is happened all the times. 522 cases. Not only that, 2026 in the month of January, there is a 46 incident we recorded. We already give the statement. There is an 11 killing. Dipu Chanda Das. The killing of brutally killing of Dipu Chanda Das, it is unbelievable. We cannot express the nature of the killing. No, take action against this type of activities, or who done this, they didn't came this government. So then in final last two questions, इस बार चुनावों में अब चूंकि लड़ाई बीएनपी और जमात के बीच में, अवामी लीग है नहीं रेस में, अवामी लीग के जो वोटर्स थे वो कंफ्यूज्ड हैं कि वोट डाले या ना डालें, किसको डाले. बीएनपी जमात के बीच में आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर होगा फॉर माइनॉरिटीज़? There is, just Awam League now at present they are not in the field, but after the liberation, our independence under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, he was the leader to organize the people for the our independence. After that, Awam League in different time, during the time of Awam League or BNP, previously minority people attacked. There is now I am not discuss that issue. At present situation, BNP and Jamaat is in the field. It was our desire they should raise the voice for the minority people. They will protect the minority people. They will execute the demands of the minority people. They should incorporate the desire of the minority people, as because they are the citizen of this country. We also raise our desire to the BNP also.
or for just to incorporate in their manifesto for in favor of minority, what types of activities they will do in future. In that case, they easily on the basis of that they can go cast their vote. It is their vote is the right of the people. They should go to the center of the vote to cast the vote. But it is reality no commitment, that type of commitment in the spirit of secularism, commitment in the spirit of secularism, commitment in the spirit of human rights, commitment in the in favor of living together with equal value. These are absent from this situation. However, at present, Jamaat-e-Islam is now, you also mentioned there is a two-party in the field. Jamaat-e-Islam, if they are trying to casting their advertise for getting the votes. But there is a problem from our side. They will establish if they in the position of the in government, they will establish Sharia law. But religious is separate issue. State is separate. Every person, every caste observe their religion in separate. But state is for all equal. This is the spirit of the independence. We own that spirit. So if they establish the Sharia, it is Islamic country. It is not. We are on that. We are a second class citizen. तो मुनिंद्र जी कह रहे हैं कि अगर जमात जीतती है तो शरिया कानून जो है वो लागू हो जाएगा और रिलीजन और स्टेट के बीच में जो सेपरेशन होना चाहिए वो नहीं रह जाएगा। सर, आखिरी सवाल, बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी हिंदूज़ हैं जो डर के मारे अब बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? आपने कभी सोचा बांग्लादेश छोड़ दूं? ब्रीफली सर। No, this is my motherland. I am staying here. My forefathers, my father also, he martyred during the time of independence. My father, we could not get the dead body. Also, my father, my brother also freedom fighter. However, we must live here. How many people? At present, near 2 million. People, minority people are here. Where go we should look after the all the community people. Right. We must stay here. Fear is the in general people. If we fear, how to leave the country? We are fighting for a secular state. We are fighting for justice. We are fighting for the development of the organization, right, in with the all together. This is our spirit. बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने कहा कि ये तो उनका देश है, ये इनकी मातृभूमि है, ये छोड़कर जो है वो नहीं जाने वाले हैं। और एक बंगाली जो बहुत पॉपुलर गीत है जो कहता है कि आमी भय कोरबो ना भाई कोरबो ना, मोरबार आगे आमी मोरबो ना, कि मैं डरूंगा नहीं और मरने से पहले मैं मरूंगा नहीं। तो ये है ढाका का वो ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर और यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं, हर धर्म के लोग आते हैं अपना मत्था टेकने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। जैसा मैंने बताया कि एक इस्लामिक मुल्क में एक राष्ट्रीय हिंदू मंदिर का होना, ये अपने आप में जो है एक अद्भुत इसका इतिहास है। तो ढाका के लालबाग इलाके के ढाकेश्वरी मंदिर में मैं स्मिता शर्मा कुछ और आवाज़ें बांग्लादेश से आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स में। नमस्कार। नाम बताना। मेरा नाम स्वराज है और मैं इस यूनिवर्सिटी का म्यूज़िक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। स्वराज, आप म्यूज़िक में हैं तो गाना गाते हैं या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? मैं गाता हूँ, मैं ख्याल गाता हूँ, विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। वेरी नाइस। आप पॉलिटिक्स में आप कितने इंटरेस्टेड हैं? पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट वैसा नहीं है।
हालांकि ये बात है कि मुझे लगता है कि हर एक इंसान को कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट या फिर रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे इस बारे में कोई राय नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में या फिर किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड या फिर उतना ज़्यादा क्या कह सकते हैं अटैच्ड नहीं हूँ। 2024 में सारे युवा निकले थे सड़कों पर, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, शेख हसीना को छोड़कर जाना पड़ा देश। अब 2 साल बाद जब इलेक्शंस हो रहे हैं, इन इलेक्शंस में क्या बदलेगा बांग्लादेश में? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बदलेगा कुछ या फिर नहीं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ज़रूर अपना एक्सपेक्टेशंस बता सकता हूँ। मेरे एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो युवा है उन लोगों को अच्छी तरह से रहने को मिले। वो जो भी काम कर रहे हैं, कोई आर्ट फॉर्म हो या फिर कोई ऐसा काम जो जिसमें वो पैशनेट है, या फिर मेरी तरह जो म्यूज़िक कर रहे हैं, डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक, उन सबको वो एक्सपोजर मिले, वो सब रिस्पेक्ट मिले, या फिर सब तरह की अच्छी काम जो है जो हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ करने की इंडिपेंडेंस मिले और सपोर्ट मिले फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट। बीएनपी और जमात 2 पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव। आपको लग रहा है कि ये दोनों पार्टियों में से जो भी जीत कर आता है, बांग्लादेश में जो इंक्लूसिविटी है, जो सेक्युलरिज्म है, जो उदारवादी है, लिबरलिज्म है, वो जारी रहेगा? इस बारे में मैं कुछ राय ना दूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मेरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर क्लियर नहीं है। सो मैं जो भी कहना चाहूँगा वो शायद गलत निकले। सो कोई कुछ गाना चाहेंगे आप हमारे लिए, जो मे बी एक मैसेज हो, एक थॉट हो ऑफ अ गुड बांग्लादेश दैट यू वांट, अ होप? हम गा लेते, लेकिन रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक बड़ा सा सरस्वती पूजा हुआ था, तो उस दौरान मैं वहाँ पे काम करते वक्त कुछ वोकल इंजरीज हुआ था मेरा, एक इंटरनल वोकल इन्फेक्शन, इसलिए मुझे गाने के लिए फिर या फिर ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है मेरे डॉक्टर से, इसलिए हम 2 लाइन भी नहीं गा सकते आपसे? हाँ श्योर। ऐसे गाने का ऐसे इस सिचुएशन से जुड़ा हुआ कुछ तो नहीं, लेकिन मैं एक कंपोजिशन गा रहा था। मेरे दादा गुरुजी पंडित अरुण भादुरी जी फ्रॉम कोलकाता, तो उनका ही एक बंदिश थोड़ा सा 2 लाइन में गाने की कोशिश कर रहा हूँ। डार डार बोलत मतवारी कोयलिया, डार डार बोलत मतवारी कोयलिया, डार डार बोलत मतवारी कोयलिया, बरन बरन खिली कलिया, जुई गुलाब चंपा चमेली बनरिया, डार डार। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कंपोजिशन वह दादा गुरुजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डार डार बोलत मतवारी कोयलिया, वर्ण वर्ण खिली कलिया, जुई गुलाब चंपा बेलरिया। तो मुझे लगता है कि हमारा देश या फिर किसी का भी जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें तरह तरह की फूल हो, पक्षियाँ हो, या फिर सुंदर एक पंछी हो, या फिर गार्डन हो, उसको जो कहते हैं। दिस इज थैंक यू।